Everyone wants quick success, quick views, quick money, shortcut methods, but at what cost? Using fake thumbnails and fake stories, fake identities, and whatnot, following trends, following fashions, for fetching the demands that are going around, and then catering to the just wants that are no good for life, for long-term life, and just feeding them till we actually become empty from inside and it looks good from out. So today I want to talk about business with integrity, and any act that we are doing and that does not have integrity, and what are the consequences in real, and how does it look so polished from outside. So this will be my topic today, and this was just a thought while I was actually working on the YouTube. I never thought of taking this journey seriously, but I thought that if I can, if I have the opportunity to earn while sharing my ideas or talent, then why not do it on a serious note? And the money, the amount that I get definitely will be utilized for some good purpose, and for helping out the needs and wants that are to the real satisfaction. So when I was scrolling the videos, when I see many YouTube videos and earning a lot of viewers, subscribers, which isn't bad, but then I also come across certain videos where it just to attract the crowd, they have the wrong thumbnails, and then when you actually open it, it is something else. And videos that have adding least value to life or anything are just flourishing. So I'm not talking this based on any jealous factor or something, because see, whatever ultimately it's in my plate, God is going to give me, and He's going to see first my intentions. So now this is what I'm talking about, is when you scroll millions and millions of followers, millions and millions of, and just to keep up to the trend. Some are fetching the demands and just supplying their wants, which are not leading and helping them in long-term life. Many online games are coming up which are leading youngsters to commit suicides, and many online games that are helping our children to be addicted, which isn't good actually. So how we are let's say if I am wanting my YouTube channel to grow and have more views and more subscribers, just so that I can earn from it, but at the same time I also have to keep in mind that I am a child of God, and first of all, integrity is something that God actually really cherishes, and for that He can test me, He can bring temptations, He can allow temptations, He will not bring, but He will allow the temptations to come, so that to test me whether I am standing on His values, taking shortcuts and using images or something which are not really right, or which are leading me to success within using the shortcut, but at the same time not helping me on a long-term basis. Now something here I want to honestly admit is, like, till now I'm exploring, but I am not really aware about the copyright thing. So sometimes when the music is available, I tend to use that because it's available on ad sound. So I am just getting used to it. So if there is anything, I would definitely want your ideas. If somebody can give me ideas, how do I know that, and how do I select the music which is taking me on a legal way, and not creating any copyright issues and all later. So this is something that I am actually exploring right now, but my intentions are pure. And what I feel is, sometimes maybe social media, you have so many, just one trending news which comes up, which might be very sensitive, but people are using that news to create followers, to build public and all. So which isn't wrong, maybe you're just being
means that are, that is providing the news, but at what cost? What are we doing? Are we actually, वो बोलते नमक और छिड़क देना जिससे जलन और बढ़ जाए? So that kind of work we should not do. And I'm not saying that I'm perfect. Sometimes I end up in mistakes, but then what I'm saying is let's reflect on and work on the feedback. जब कहीं हमें पता चलता है कि हम गलत हैं, तो उस गलती का एहसास होते ही हमें उस चीज़ पे काम करना चाहिए और हमें अपने आप को सुधारना चाहिए. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव टू फेस गॉड, वी ऑल हैव टू फेस अ कर्मा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब एक इंसान एक डेथ बेड पे होता है, व्हेन अ पर्सन इज ऑन द डेथ बेड, you don't know what that person is facing. सबको शायद लगता होगा कि इसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, फेम है, नाम है, फॉलोअर्स है, सब कुछ है. द पर्सन हैज एवरीथिंग, द फॉलोअर्स, बंगलो, मनी, फेम, एवरीथिंग. सो दैट पर्सन मस्ट हैव डाइड वेरी पीसफुली. वो शायद इंसान एक अच्छी मौत मरा होगा, लेकिन एक्चुअल में उस इंसान का दिल वही जानता है. ओनली दैट पर्सन नोज हु इज़ ऑन द डेथ बेड दैट व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू. सो समटाइम्स द आउटर अपीयरेंस इज इन द राइट इमेज. कभी कभी जो बाहरी रूप होता है वो एक असली रूप नहीं होता, दिखता नहीं है, अंदर काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं. इनसाइड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन. एंड इफ़ वन पर्सन वॉन्ट्स दैट सेटिस्फैक्शन, दैट रियल पीस, अगर किसी को वो एक रियल जो होती है, जो एक शांति, एक सुकून चाहिए, देन अ पर्सन शुड ऑलवेज वर्क ऑन द फीडबैक. उस इंसान को हमेशा एक फीडबैक पे वर्क करना चाहिए और एक सही तरीके की ज़िंदगी को जीना चाहिए. एंड दैट पर्सन शुड लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू गॉड्स वैल्यूज़ और इन अ राइट वे. Let's take examples of, I'm not blaming anybody, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम अस्पताल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब OP पेशेंट्स आते हैं, OPD पेशेंट्स, हॉस्पिटल पेशेंट्स, व्हेन दे कम, OPD पेशेंट्स, एंड नाउअडेज दिस इंश्योरेंस फैसिलिटी इज़ देयर. आजकल वो इंश्योरेंस कार्ड की फैसिलिटी चल रही है जिसमें बेनिफिट होता है कंपनी की तरफ से कि वो IP में अगर कोई फैसिलिटी होती है तो वो ज़्यादा पैसा देती है, मतलब कि वो कार्ड का ज़्यादा फ़ायदा होता है. अगर आउट पेशेंट IP में इन पेशेंट में कन्वर्ट हो जाए तो वो IP में इंश्योरेंस कार्ड की फैसिलिटी ज़्यादा होती है. आई एम सॉरी इफ़ आई एम मेकिंग एनी रॉन्ग सेंस, बट दिस इज़ व्हाट आई नो, एंड सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस. If there is any corrections or anything, please add in the comments below, so I will also get to know, explore more ideas. तो उससे क्या होता है कि when people are seeing that insurance card, they think okay, let's convert this OP patients to IP. मतलब इस OPD पेशेंट को आप IP में कैसे कन्वर्ट करें, इस पे एम किया जाता है. अरे आप जिंदगी से खेल रहे हैं, यू आर एक्चुअली प्लेइंग विद लाइफ. वेयर इज़ द इंटेग्रिटी? यहाँ पे एक ईमानदारी कहाँ है? आंट वी वन स्केर्ड ऑफ कर्मा? सो दैट्स द रीज़न आजकल अस्पताल पे भी कोई भरोसा नहीं रहा. दैट्स द रीज़न नाउअडेज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हॉस्पिटल्स. एंड बिफोर, इफ आई बिलोंग टू अ बैकग्राउंड वेयर माई पेरेंट्स वर मिशन हॉस्पिटल वर्कर्स, जहाँ पे सेवा पहली होती थी और वेयर द सर्विस यूज्ड टू कम फर्स्ट. So, I'm forgive me if I'm messing up in my translation. I'm just gearing up now. I'm learning to do two-way things. And in my picture audio, which I usually upload, I take help from AI. I give my thoughts to AI. मैं कभी-कभी जब वो सिर्फ एक पिक्चर पे ऑडियो जो अपलोड करती हूँ उसमें मैं AI की हेल्प लेती हूँ. I give my thoughts. मैं AI को अपने थॉट्स देती हूँ और वो मुझे हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश दोनों का मुझे देता है. It gives me both English and Hindi, so it's smoother for me to read. But when it is ongoing video, it's little difficult for me, but I am trying and I am definitely going to get success by God's grace. और मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ और होपफुली कि मैं इसमें बाद में तरक्की शायद पाऊँ, बाद में शायद नहीं, यस, परमेश्वर की कृपा से. So this is one example. Another example is someone starting a business, somebody starting an educational institution with a vision or a mission. किसी ने एक स्कूल और एक एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया एक विजन और मिशन के साथ कि बच्चों का अच्छा होना चाहिए. फिर धीरे धीरे स्लोली दैट बिजनेस ग्रू और धीरे धीरे उनका एक्सपेंशन हुआ, वो बढ़ता चला गया. और फिर व्हाट हैपेंड? द विजन फेडेड. द विजन इज़ ओनली ऑन द बोर्ड. वो विजन एक
धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया और प्रॉफिट ने ओवर पावर कर लिया और उस पर सिर्फ जो उसका दुगना तिगना प्रॉफिट मिलता है उसने उसको ओवरटेक कर लिया। अब विजन गया कहीं और अब हुआ कि भाई पहले प्रॉफिट होना चाहिए, एडमिशन्स कैसे हम लोग अपनी तरफ रिटेन करें और हमारे कॉम्पिटिटर के पास में एडमिशन्स नहीं जाने चाहिए। अगर बच्चे की जो नीड है वो अगर हम नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, इफ़ द नीड इज़ नॉट बीइंग फुलफिल्ड इन माय इंस्टीट्यूशन, देन व्हाई डोंट आई जस्ट गाइड द चाइल्ड टू द अदर, टू माय कॉम्पिटिटर? If the competitor has a better facility, a better way to cater to the need of that particular child, अगर मेरे कॉम्पिटिटर के पास में उस बच्चे का अच्छा होना है या फिर उसकी जो स्ट्रैटेजी उस बच्चे की नीड को फुलफिल करती है, तो मुझे उसको सजेस्ट करना चाहिए कि आप उनके पास जाइए, मेरे पास इसकी फैसिलिटी नहीं है। बट व्हाट हैपन्स, यू नो, वी वांट टू रिटेन, बट लेकिन सब कुछ हमें चाहिए, सेल्फिश डिज़ायर, एंड दैट्स हाउ एजुकेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो फॉलिंग ऑफ, नॉट कम्प्लीटली बट इट इज़ गोइंग, यू नो, समवेयर डिविएटिंग फ्रॉम द विजन एंड मिशन। तो इंटेग्रिटी इज़ लॉस्ट। हम बात करते हैं इंटेग्रिटी की, हम बात करते हैं एम्पैथी की, दूसरों को समझने की, बट ये सब सिर्फ सोशल मीडिया पे है, सिर्फ एक बोर्ड पे रहता है। बट वी शुड रिफ्लेक्ट, हमें इस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि वो सच में ऐसा है, सच में हम इस पे काम कर रहे हैं कि नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली हम सबको अपना चेहरा या अपनी जो अकाउंटेबिलिटी वो गॉड को देनी है। वी हैव टू बी अकाउंटेबल टू गॉड। लेट द सक्सेस बी स्लो, सक्सेस हो ना हो, स्लो हो, it doesn't matter, but it has to be properly aligned. We need to take the steps in right manner. So this is one example. Many companies, I don't know how far it is true, but this is my thought process, that many companies have charitable institutions just to safeguard from tax, you know, ताकि टैक्स ना लगे। कई बार दिस इज़ द मोटिव एंड दैट्स नॉट रॉन्ग अंटिल यू नो टिल इट इज़ एक्चुअली सर्विंग द पर्पस और किसी को इसका फ़ायदा हो रहा है, आपको भी फ़ायदा हो। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। अगर इफ़ इट्स helping you, it should help others also in a right manner. It should not just, you know, just fool someone. So this is what is happening. Social media पे भी आप देख लीजिए, social media also we are using content, we are using a picture something else and in video something else, then especially fulfilling the demands which are you know not leading to the right direction. जैसे हो गया अपन बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड को देख लीजिए। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, दीज थिंग्स आर जस्ट फ्लोइंग विद द फैशन, यू नो, समथिंग दैट इज़ अट्रैक्टिंग लस्ट, जो गलत भावनाओं को या गलत फीलिंग्स को जो अट्रैक्ट करने के तरीके होते हैं, जैसे द ड्रेसिंग स्टाइल, यू नो, समथिंग दैट इज़ अट्रैक्टिंग एंड मेकिंग पीपल फॉल इनटू टेम्पटेशन। किसी को किसी गंदी चीज़ों में गिराना, ऑलरेडी आर ह्यूमन नेचर इज़ सिंफुल, हमारा नेचर ऑलरेडी सिंफुल है, लेकिन अगर हम उसको और सिन में लीड करते हैं तो अल्टीमेटली पैसा आता है, सब कुछ आता है, बट इट्स रॉन्ग, वो सही नहीं है। और वन थिंग दैट आई फील इज़, हु इज़ डिमांडिंग? वी ह्यूमन्स। डिमांड कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग्स। हु इज़ फुलफिलिंग द डिमांड्स? ह्यूमन्स। और फुलफिल कौन कर रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? इट्स ह्यूमन बींग्स। अगर दोनों ही में ह्यूमन बींग्स अलाउ कर आर पार्टिसिपेटिंग, तो या तो एक प्रोडक्शन बंद हो गंदी चीज़ों का ताकि वो डिमांड ही ख़त्म हो जाए, या वो डिमांड ख़त्म हो ताकि प्रोडक्शन ना रहे उसका। टू वे प्रोसेस होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टॉक अबाउट लेट्स से लिकर और एनी थिंग दैट इज़ जस्ट लेट्स से टोबैको और एनी थिंग दैट इज़ हार्मिंग हेल्थ। अगर इसका हम प्रोडक्शन बंद करेंगे, टर्न ऑफ द प्रोडक्शन कम्प्लीटली, पीपल विल हैव नथिंग टू हैव, दे विल हैव टू अल्टीमेटली चूज़ हेल्दी थिंग्स। उनको फिर हेल्दी थिंग्स ही खाना पड़ेगा ना। जैसे कि अगर 3 दिन आपके घर में यू नो अच्छे पकवान वगैरह नहीं आए और आपको भूख लग रही है बहुत, तो आप क्या सब्जी रोटी से ही काम चलाएंगे? बट योर हेल्थ इज़ बिकमिंग गुड। सो सिमिलरली वी नीड टू थिंक अबाउट दैट mindset. We talk about we want our country to be a better country, we want our world to be the better place, but we are not doing anything for it.
वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड शॉर्टकट्स, हम सिर्फ शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। और हमारे बच्चे व्हाट आर दे डूइंग, दे आर फॉलोइंग ट्रेंड्स, दे डोंट नो कि हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमको एक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयरिंग वन पीस ड्रेस और वेयरिंग अ ड्रेस विच इज़ मेकिंग यू फील वेरी ब्यूटिफुल, स्मार्ट, स्लिम, यू नो, बट शोइंग सम पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, जहाँ पे आपका कुछ बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, या फिर यू नो इट्स मोर अट्रैक्टिव, इट्स मेकिंग आपको स्लिम और ट्रिम फील करवाते हैं, बट एट द सेम टाइम आप किस माहौल में वो ड्रेस को पहन रहे हो, इन विच इन्वायरमेंट आर यू वेयरिंग दैट ड्रेस। इफ़ इट इज़ समवेयर वेयर ट्रेडिशनल माइंडसेट इज़ देयर, जहाँ पे लोगों ने कभी ऐसी ड्रेस देखी ही नहीं है और उनकी आँख वहीं आकर्षित हो जाती है, द पीपल स्टार्ट फीलिंग टेम्प्टेड, देन आई डोंट थिंक दैट वी शुड एनकरेज दैट। बट गोइंग टू द वेस्टर्न कल्चर, आप अगर अमेरिका या वेस्टर्न कंट्री में चले जाते हैं तो वहाँ पे इट्स वेरी कॉमन, और वहाँ पे कोई इंसान आपका से घूरता नहीं है उस चीज़ में, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन ओवर देयर, और वहाँ पे लस्ट इतनी जल्दी उस चीज़ को कैच नहीं करता। तो हमें उस माहौल का बड़ा ध्यान रखना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे एक्ट को प्रेजेंट करना चाहिए। सो अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट टू बॉलीवुड और अ प्रोडक्शन टीम, we start ending up creating funny acts on our political leaders or police officers and all। बॉलीवुड कहो, मूवीज़ कहो, उसमें इनके जो एक कैरेक्टर होता है उसका मजाक बनाया जाता है, एंड यू आर जस्ट यूजिंग दैट कैरेक्टर इन एनी वे। इज इट राइट? It is not right at all, because these positions are meant to safeguard our country. These positions hold a lot of respect, और हम सिर्फ एक अट्रैक्शन पाने के लिए, प्रॉफिट पाने के लिए वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स विच इज़ नॉट राइट। हम मजाक बनाते हैं उस चीज़ का, और वो चीज़ सही नहीं है। आई फील समवेयर अगर हमको बेटर इंडिया बनाना है, वी वॉन्ट अ बेटर कंट्री, वी वॉन्ट ऑल दीज थिंग्स, वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। हमें खुद ही अपने घर से ही इस चीज़ को चालू करना पड़ेगा। मे इट बी डिसिप्लिन, मे इट बी यू नो फुलफिलिंग एनी नीड्स और वॉन्ट्स और एनी डिज़ायर। उस पर पहले चेक कीजिए कि ये डिज़ायर एक्चुअली लॉन्ग टर्म में मेरे लिए सही है कि नहीं। इज़ इट राइट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस फॉर माई लाइफ, फॉर माई चिल्ड्रेन, एंड देन वी शुड गो अहेड विद इट। सक्सेस स्लो हो चलेगा, लेकिन इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन फेक आइडेंटिटी, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू आर एक्चुअली क्लोजिंग योर आईज, व्हेन यू आर ऑन दैट यू नो दैट पोजिशन वेयर यू हैव नो हेल्प, एंड व्हेन यू आर टेकिंग दैट लास्ट ब्रेथ, जब आप वो लास्ट एक आखिरी सांसें ले रहे होते हो, तब आपके मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे। यू बी थिंकिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू विल सी कि मैंने क्या पाया ज़िंदगी में। आई अर्न सो मच आउटसाइड, मैंने बाहर तो सब कुछ यू नो गेन किया, लेकिन मुझे पीस ही नहीं है, मेरे पास शांति नहीं है। ऐसे कई लोग हैं आजकल जो ईमानदारी से काम करते हैं। मैनी पीपल आर वर्किंग विद हार्ड वर्क, बट उनका नाम सोशल मीडिया पे नहीं आता। दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया, दे डोंट अर्न बिग मनी, उनके पास बंगले नहीं, उनके पास गाड़ी नहीं है, बट उनके पास क्या है? सच्ची शांति है। दे हैव रियल पीस। So I feel that you know God is ultimately, one more thing that I feel is that I believe in eternal life, and I believe that after we pass this earth, हम जब इस धरती को क्रॉस करेंगे, हमारे लिए उस खुदा ने एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। जब हम सब फिर से मिलने वाले हैं उस जगह पे, मैं ये दुआ करती हूँ कि परमेश्वर, अगर तूने मुझे इस धरती पे इतना सुकून, इतने अच्छे से संभाला है, मेरे से कठिन परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं जो ईमानदारी से भी काम करते हैं और उनको शायद ये सारी चीज़ें नहीं मिली, तो मैं ये दुआ करती हूँ कि आई प्रे दैट गॉड यू गिव देम मच मच हायर प्लेस देन मी, एंड इट विल बी सो हैप्पी थिंग फॉर मी टू सी देम यू नो इन दैट बेटर प्लेस। इफ आई एम सिटिंग डाउन, लेट देम सिट ऑन द चेयर, आई बी हैप्पीली विलिंग टू सी देम। अगर मैं ज़मीन पे हूँ तो मैं ये मेरे लिए खुशी का एक अवसर होगा कि उनको मैं चेयर पे बैठे हुए देखूँ। आई मीन, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, वहाँ तो मतलब अलग ही फैसिलिटी होगी, बिकॉज उतने शिद्दत से, उतने शुद्ध मन से उन्होंने काम किया हुआ है धरती पे, और बिना किसी रिकग्निशन के, बिना किसी झूठ के, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी चीज़ के पीछे भागते हुए, उन्होंने जैसी परिस्थिति में
है उसमें भी ईमानदारी से काम किया है। सो दिस इज़ माई प्रेयर, अगर आप उस ईमानदारी इफ़ यू आर पर्सन हु इज़ वॉकिंग इन दैट इंटेग्रिटी एंड आप ईमानदारी से चलने वाले इंसान हैं, तो आज मेरी दुआ यही है कि आप गिव अप मत करिए, डोंट गिव अप और डोंट फील सैड, आप हताश मत होइए। कई बार होता है कि कई बार हमें एनकरेज करने के लिए नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमें कभी साइन नहीं दिखते तो हमें हताशा आ जाती है, बट गॉड हैज़ अ बिगर रिवॉर्ड फॉर यू। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्ड रखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो है सुकून, वो दिल का सुकून जो आपको और आपके परिवार को मिलेगा। द काइंड ऑफ पीस दैट यू एंड योर फैमिली विल हैव, none other person will be able to have until unless they follow this kind of integrity and purifying the intention. So I hope I made this sense with this video, and may God bless us all, and परमेश्वर हमारी सहायता करे एक अच्छे और सही रास्ते पे चलने के लिए, and may we all get the strength to pursue it and कंटिन्यू वॉक ऑन दैट पाथ, और हम सभी को ऐसी शक्ति मिले कि हम गिव अप ना करें और हम एक सही एक ही कंसिस्टेंसी में हम उस राह पे चलें।